یہاں پر آپ کو بتائیں گے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا حتمی فیصلہ جمعے یا اگلے سوموار کو ہوگا۔ محسن نقوی سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، انہیں ICC کے معاملے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اس ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان شرکت کرے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ جمعے یا سوموار کو ہوگا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، انہیں ICC کے معاملے پر بریفنگ دی ہے۔ اسی پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا یہ فیصلہ اب جو ہے جمعے یا سوموار کو آئے گا؟ جی بالکل، جو کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں اور جو چیئرمین PCB ہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ جو ICC کے جو معاملات تھے اس پر ڈیٹیل جو ہے بریفنگ ہوئی دی ہے، جو بریف کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، اور انہوں نے تمام جو آپشنز ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھے ہیں، اور انہوں نے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے تمام سرائیاں چل رہی تھیں اور بہت سے یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ چیز آ گئی تھی کہ شاید جو ہے پاکستانی ٹیم کے جانے کا فیصلہ اس ملاقات میں ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی جو چیئرمین PCB ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اس حوالے سے کہ ٹیم کے جانے، شرکت کرنے یا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یا تو جمعے کو ہوگا یا پھر سوموار کو جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس وقت تک جو ہے تمام جو آپشنز ہیں جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھی ہیں، کوئی مشاورت بھی ہوگی، لیکن حتمی فیصلہ ٹیم کے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے نہ کرنے یا اور بھی کوئی بھی آپشن ہے اس کا فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ یہ محسن نقوی اور چیئرمین PCB ہیں، انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا ویس بتائے گا انفارمیشن آپ کے پاس اگر کچھ آئی ہو کہ کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انفارمیشن تو جو ہے چیزیں ہیں، کیونکہ محسن نقوی جو ہیں وہ ہمیشہ فیکٹ پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور جو کہ اصولی موقف ہے ان کا، جو وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB ہیں محسن نقوی کا جو اصولی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ کرکٹ کا جو کہ بہت حساس معاملہ ہے، اور اس پر جو پاکستان کا جو انہوں نے ایک جو عزت ہے اور جو وقار ہے، انہوں نے ہم نے ماضی کے ایونٹس میں بھی دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند رکھا، اور اب جو کہ ایک معاملہ ایسا آیا ہوا ہے کہ تمام جو کہ ICC کے معاملات ہیں اور جو بھارت کی جو ہٹ درمی ہے اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ جو رویہ ہے اور بنگلہ دیش کا جو موقف ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو پاکستان جو ICC میں جو پاکستان کے ساتھ جو پاکستان PCB کی بورڈ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا کیا جو ہے وہ اس پہ جو بیانیہ ہے، وہ تمام تر آپشنز، اور اس میں وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہیں جو چیئرمین PCB ہیں، انہوں نے جو ہے وزیر اعظم کے سامنے یہ بھی رکھا کہ کیا اس میچ میں شرکت کرنی ہے، بائیک آؤٹ کرنا ہے، یا صرف بھارت کے ساتھ میچ کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، اور جو ہمارے جو بنگلہ دیش کے ساتھ جو بورڈ کے ساتھ جو ناروا سلوک جو آیا ہے اور ان کا جو سٹانس ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں ان کے سامنے، وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے، اور جو اب ہمارے معتبر ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب کابینہ میں بھی جانا ہے، اور حکومت جو ہے یہ ایک مشاورت کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اور جو کہ کرکٹ کو بھی سمجھتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو کہ عالمی جو ایک منظرنامے پر جو کہ کرکٹ کے دیکھ رہے ہیں، تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے۔ حکومت جو ہے سر جوڑ کر بیٹھے گی اور اس پر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستانی ٹیم کو جانا چاہیے یا اس کا جو ہے ٹورنامنٹ کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی جو ہے اور راستہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ اس میں جو ہے جو کہ بنگلہ دیش کا جو نیریٹو ہے، اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو موقع ہے فورن آفس جو پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے اس کو بھی آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ ڈپلومیسی کے زمرے میں بھی یہ چیز آ رہی ہے، اور جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے وہ تو بہت فاسٹ ڈپلومیسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس میں دوست ممالک ٹھیک ہے ویس ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے خرم کلیم، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر ابھی ایک جو سچویشن اب کریٹ ہو چکی ہے اور اب یہ سوال ہے کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، اور فیصلہ جو ہے وہ بھی ابھی جمعے یا سوموار والے دن آئے گا، آپ کیا کومنٹ کریں گے اس سچویشن پہ؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور یہ سب دنیا کی کرکٹ کی جو ہے نا اس سے مستقبل وابستہ ہے۔ آج جس طرح سے بھارت نے اس کرکٹ کو ICC کو یہ رہنمائی بنا رکھا ہے، اس کے پیسے کی ضد میں اپنے زوم میں جو ہے اس نے چند 2-3 ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر باقیوں کو انفلوئنس کر کے وہ دھوس دھاندلی سے جو چاہتا ہے وہ کرکٹ کے اندر کر رہا ہے، تو یہ اس کو چیلنج کرنا اور اس کو ختم کرنا یہ بڑا ضروری ہے اس وقت۔ اور محسن نقوی صاحب کی جو پالیسی ہے اور اس کے اندر تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان کو اور ICC کو کرکٹ بھارت کی جو ہے ضد سے اس کے جو اس کا تکبر ہے اس سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا، آبویسلی محسن صاحب نے
मोहसिन नकवी साहब ने ब्रीफिंग दी होगी, वज़ीर आज़म साहब को सारे हालात से आगाह किया होगा, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे। तो इस वक्त बड़ी प्रैग्मेटिकली बहुत अच्छी बात है कि मजीद 3-4 दिन सोचने का मौका मिल गया और इसमें एक बेहतर फैसला जिसमें पाकिस्तान तमाम ऑप्शंस पर मजीद भी डिस्कशन कर सकता है। फिर ये कि आईसीसी को भी एक मौका दे दिए कि वो अपने फैसले को रिवाइज कर ले, वो गौर कर ले, बांग्लादेश को एक मौका दे दे। स्कॉटलैंड ठीक है, उन्होंने कर लिया, लेकिन अगर इस तरह से वो करेगा तो पाकिस्तान तो फिर बांग्लादेश के साथ जाना फिर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी इस मसले को बारहा आईसीसी में उठाया। आईसीसी में जब वोटिंग हुई थी तो भारत ने तो जब तमाम बोर्ड मेंबरान को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन जिस तरह से इस मसले को हैंडल होना चाहिए था कि इंडिया जब चाहता है, जिस वेन्यू में चाहता है खेल लेता है। और अब पाकिस्तान ने भी चैलेंज किया चूंकि इंडिया को, और इंडिया ने तो फिर पाकिस्तान के आगे भी मजबूर हो गया कि जी हमें ठीक है, हम इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो बड़ा क्लियर मैसेज दिया आईसीसी को कि जो फार्मूला आप इंडिया और पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए भी अप्लाई करें ना, तो ये पाकिस्तान जो है अपने मौकफ से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ठीक है, आईसीसी को भी सोचने का मौका देना चाहिए और आईसीसी भी मजबूर होगी इसमें फैसला करने, क्योंकि पाकिस्तान ने आज जो ढके छुपे अल्फाज में जो पैगाम आईसीसी को पहुंचा वो ये पहुंचा है कि एक तो पाकिस्तान अपने प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान हर सूरत बांग्लादेश का साथ देगा। और इसमें जो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन बहरहाल मौजूद है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से क्विट कर दे, इंडिया के मैच को ना खेले और उसमें वॉकओवर दे दे इंडिया को। ठीक है, इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आईसीसी को जरूर सबक मिल जाएगा कि उसका जो टूर्नामेंट है उसकी अफादियत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी जो आईसीसी टूर्नामेंट होता है उसकी जान जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो ब्रॉडकास्टर जो है वो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू जो है वो 50% से भी कम रह जाएंगे और आईसीसी के लिए किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आईसीसी इवेंट जब होता है तो जो ब्रॉडकास्टिंग के अमाउंट है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है और उसी से फिर बाकी ममालिक को भी उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली शेयर दिया जाता है। तो ये तो आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर पाकिस्तान वॉकओवर दे देता है और अभी से मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो वज़ीर आज़म की जो आज बातचीत हुई तो वज़ीर आज़म ने भी यही हिदायत की है पीसीबी चेयरमैन को कि आप तमाम ऑप्शंस को सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए कोई भी फैसला करें। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली फैसला तो गवर्नमेंट का ही होगा, पीसीबी तो फैसला नहीं करेगी, क्योंकि पीसीबी के पास तो कोई चॉइस नहीं। पीसीबी तो उसे तो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, लेकिन अगर हुकूमत उसकी इजाजत नहीं देती टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तो डेफिनेटली फिर पीसीबी मजबूर हो जाएगी, वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगी। फिर सर सवाल यहाँ पर यह है कि इंडिया की जानिब से ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों दिखाए जा रहे हैं जब 2 ममालिक को फेवर दी जा सकती है। जैसे हम पाकिस्तान और भारत की बात करें, हमने माजी में भी देखा है कि वेन्यूज चेंज होते रहे हैं, तो फिर बांग्लादेश को ये फेवर क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए, वहाँ जो एक आरएसएस और हिंदुत्व की सोच है वो उसके हाथों मजबूर है। बेचारा एक मुल्क के अच्छे लोग हैं, वो इतने बुरे लोग नहीं है, लेकिन वहाँ की जो आरएसएस मेंटालिटी है, जो हिंदुत्व मेंटालिटी है, जिन लोगों की आजकल हुकूमत है इनके हाथ में, अवाम की हम बुराई नहीं कर सकते, अवाम तो मोहब्बत करने वाले होते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ जो अरबाब इख्तियार है, जिस पोलिटिकल पार्टी का वहाँ पे जोर है, वो हर सूरत में दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे लोगों को कुचलने की कोशिश करते हैं। उनकी एक अप्रोच है, खास अप्रोच अपने पड़ोसियों के साथ भी ये करते हैं। जब वो आईसीसी में जाते हैं, जब आईसीसी में उनको कंट्रोल मिलता है तो वहां पर भी वो सबको मगलूब करने की कोशिश करते हैं। तो यही उनका तरीक़ाकार है। अब चूंकि उनकी कन्फ्रंटेशन चल रही है बांग्लादेश के साथ, तो अब उसका क्रिकेट के मैदान में मुकाबला नहीं करेंगे, वो उसको सियासी मैदान में उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सियासी मैदान में हर जगह से, जिस मुल्क से उनकी दुश्मनी होती है, हर जगह जहाँ किसी मुल्क का थोड़ा सा एडवांटेज होता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब आईपीएल के अंदर से अगर वो मुस्तफिजुर रहमान को खिला लेते तो कौन सा पहाड़ गिर जाता उनके सर पे, लेकिन गंदगी और गंदी सोच, घिटाई वाली सोच, उसकी अक्कासी करना, एक होता बंदा अपनी फितरत छुपा नहीं सकता ना। अगर घटियापन उनके दिमागों में है तो वो घटियापन उन्होंने दिखाना ही दिखाना है। तो वो हिंदुत्व आरएसएस की सोच जो है वो निकल आई वहां पे। बहाना क्या बनाया जी, क्योंकि बांग्लादेश में किसी हिंदू को कत्ल हो गया तो अब हम जो है आप अपने मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ नहीं खिलाएंगे। सर ये जब इनिशियली पूरा मामला जो शुरू हुआ है कि जब बांग्लादेश ने जाने से वहां पर इनकार किया, उसके बाद हमने देखा है कि कुछ दिन का वक्त लिया गया है और आईसीसी ने भी इस पर जो है वो नजर सानी की कोशिश की है इस पूरे मामले पे, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि बांग्लादेश की जानिब से भी एक स्टैंड सामने आया, उन्होंने वहां पर जाने के लिए जो है वो हामी भर ली थी। लेकिन फिर एक दिन बाद से ये खबर सामने आती है कि बांग्लादेश वहां पर नहीं जाएगा और द नेक्स्ट डे जो हम खबर सुनते हैं कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया गया है स्कॉटलैंड से। इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश की जानिब से क्या रीजंस रही होंगी? देखिए, बांग्लादेश का मौकफ तो बड़ा क्लियर है, वो हिंदुस्तान में मैच नहीं खेलना चाहते, क्योंकि जिस तरह से दुश्मनी की आग बांग्लादेश के हवाले से इंडिया में दहक रही है, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, हसीना वाजिद को वहाँ खिताब कराए जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर इंडिया के अंदर खिताब कर रही है, तो वहां पर तो अवाम को, हुकूमत को, हर मशीनरी को पूरे के पूरे, और वो तो आरएसएस मेंटालिटी का मुल्क है, वहां पर जो ऐसे ग्रोह टोले करते रहते हैं जो
पत्थर लेके हाथों में, तलवारें लेके घूमते रहते हैं। अब कल कोई वहां ठीक है सर, इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर अब आज का जो बड़ा सवाल ये है वो ये है कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा या नहीं करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत की, आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ था, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी बांग्लादेश के फेवर में वोट दिया और पाकिस्तान जिस हद तक जा सकता था पाकिस्तान गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो आईसीसी का दौरा में आ रहा उसको भी चैलेंज किया। मगर क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप के बाइकाट का फैसला है, ये इसमें पाकिस्तान की जो पहले ही जो रिजर्वेशन हैं वो कंसीडर हो चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये बावर करवाया था कि हम इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो इंडियन जो आईसीसी है उसने पाकिस्तान को ग्रांट किया था कि आप अपने जो मैचेस हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे श्रीलंका में जाकर खेलें। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि बाइकाट नहीं करेगा और पाकिस्तान को अपने मैचेस वहां पर जाकर श्रीलंका में खेलने होंगे। क्योंकि आप बाइकाट तो इस सूरत में कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ खेलने के कि अगर आप डायरेक्ट इंडिया पार्टी बन के सामने आता, क्योंकि ये डिसीजन हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनके वोटिंग के बाद हुआ है। तो उसमें फिर इंडिया डायरेक्ट पार्टी बन के सामने नहीं आया, तो पाकिस्तान इस तरीके से फिर कोई भी इस तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को आईसीसी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सामना करना पड़े। सर लेकिन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है इस चीज़ पर। उनका ये कहना है कि अगर किसी और टीम को फेवर दी जा सकती है तो बांग्लादेश को फेवर क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए, इसमें बिल्कुल ये पाकिस्तान का दुरुस्त मौक़िफ़ है और पाकिस्तान का बिल्कुल राइट स्टैंड था। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे 96 का जो वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में, उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका का टूर करने से इनकार कर दिया था। तो उनके जो पॉइंट्स किसी दूसरे को अलॉट कर दिए गए थे। इसी तरीके से जो 2003 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें इंग्लैंड ने अपनी टीम को जिम्बाब्वे भेजने से और सदर मुगाबे के साथ उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें भेजने से इनकार कर दिया था। फिर न्यूजीलैंड ने कीनिया अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। तो उनके मैचेस भी फॉरफीट हो गए थे मगर उनको वर्ल्ड कप से निकाला नहीं गया था। तो अब ये बांग्लादेश की भी एक बिल्कुल ट्रू रिजर्वेशन हैं क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके प्लेयर्स को आईपीएल से रिलीव कर दिया गया। टेंशन इंडिया की जाने से स्टार्ट हुई है और जो भी पॉलिटिसाइज हुआ सारा सिस्टम इंडिया की जानिब से हुआ। तो उसमें मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को इस तरह निकालना नहीं चाहिए था और बांग्लादेश का जो रिजर्वेशन थी उनको कंसीडर करके उनको भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने की इजाज़त देनी चाहिए थी। सर अगर इन केस पाकिस्तान बैक ऑफ करता है, बाइकआउट करता है वर्ल्ड कप का, तो क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं? देखिए, आईसीसी के जो फिर कोड ऑफ कंडक्ट है वो जो लागू होगा डेफिनेट पाकिस्तान पे, क्योंकि आप बगैर वजह के आप बाइकाट कर नहीं सकते। जब आपकी जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस कर दिया गया, वो आपने कहा था हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो न्यूट्रल वेन्यू पे आपको अलॉट कर दिया गया। तो उसके बाद भी अगर आप बाइकाट पे जाएंगे तो फिर जो आईसीसी की जो मेंबर मालिक हैं उनकी इजलास होगा। फिर जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, आईसीसी अपने इवेंट्स पाकिस्तान को अलॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान में जो पीएसएल है उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीकन के टॉप प्लेयर्स हैं, वो अपने प्लेयर्स को पीएसएल में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान का ब्रांड मुतासर होगा और फिर दूसरे जो ब्रॉडकास्टिंग के इश्यूज हैं और फिर आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है वर्ल्ड कप का, बाकी इवेंट्स हैं, वो उनमें मुश्किलात का सामना होगा। तो मेरा ख्याल है कि काफी सोच समझ के पाकिस्तान को फैसला लेना होगा। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद, साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर अभी इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा नहीं, और क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश की हिमायत करने का जो है डायरेक्ट ऐलान भी कर दिया इस चीज़ का, आप क्या कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे? बहुत शुक्रिया। मेरा तो बड़ा वाज़ेह, बड़ा ठोस, बड़ा बलबला मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को दो चीज़ों में से एक चुन लेनी चाहिए। एक तो ये है क्रिकेट का खेल, उसके मफादात, उसको खेलने से जो पैसे मिलते हैं, उसके साथ और जो लवाजमात हैं, जो पीएसएल है, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्रिकेट के मफादात हैं, बांग्लादेश की कौम के उनके जज्बात हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ें एक तरफ और अपने बांग्लादेशी भाइयों का साथ देना जो है वो हमारी सबसे इस वक्त अहम ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जितने भी नुकसानात हैं उनका अजाला भी हो सकता है।
लेकिन एक दफा अगर एक कौम के साथ आप थोड़ा बहुत